Good morning, students. So today we are start our next chapter of macroeconomics, chapter number seven, chapter number 3, income, national income and related aggregates. Yes, chapter number 3, national income and related aggregates. Okay. So students, first of all, we will discuss introduction. So introduction, actually national income is an important concept of macroeconomics, and there are various aggregates or variant of national income. Each aggregate has a specific meaning, method of measurement and use. So the various aggregates of national income are first is gross domestic product at market price. Product at market price. Okay, this is GDP at market price. Okay, and the second aggregate is gross domestic product at factor cost. Okay, third is net domestic product at market price. Fourth is net domestic product at factor cost. And student, this is NDP at factor cost. NDP, any net domestic product at factor cost, or you can say this is our domestic income. This is our domestic income. Okay. And the fifth aggregate is gross national product at market price. Sixth is gross national product at factor cost. Seven is net national product at market price. And eight is net national product at factor cost. Okay, student, and you can say this is our NNP at factor cost. Net national product at factor cost is our national income. National income. Okay, clear students? So NDP at factor cost, NDP at factor cost, it is our domestic income, and NNP at factor cost. NNP at factor cost, this is our national income. So when we calculate the national income, then what we measure? NNP at factor cost. ओके, जब भी आपको नेशनल इनकम को निकालना होता है तो आप क्या निकालते हैं? NNP at factor cost. और when we calculate the domestic income, so then we measure the NDP at factor cost. Okay, clear students? So now second is basic aggregates of national income. Basic aggregates of national income. Basic aggregates of national income. So students, actually in an economy,
various goods and services are produced by different productive units during a period of 1 year. बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में 1 ईयर में, ठीक है, प्रोड्यूसर के द्वारा. सो सच गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. और आप ये सोचें कि हम अगर उन सबकी क्वांटिटी के टर्म में उनको ऐड करें तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज को क्वांटिटी फॉर्म में उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो देयरफॉर दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसीलिए हम उनको मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो देयर आर मेनी एग्रीगेट्स in national income to measure the value of goods and services in terms of money. So let us start with the gross domestic product at a market price. Okay, तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, ये gross domestic product at market price. Okay, so gross, yes, gross domestic product at market price. This is GDP at market price. Okay, so it refers to gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ओके, तब मैंने क्यों लिखी है आपको ये बता दूं. देखो, मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब देखिए, ये जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसी नाम से आपकी ये क्या बन जाती है, डेफिनेशन. आप उसको इजीली लिख सकते हो. क्रैमिंग करने के बजाय आप इजीली जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन, यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस विद द हेल्प ऑफ दिस नेम. देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू. ओके, एक तो क्या है, ये मार्केट प्राइस के ऊपर है तो इसीलिए यहाँ क्या आ रही है, मार्केट वैल्यू आ रही है. ओके, दूसरा ये क्या है, ग्रोस है, नेट नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, इट रेफर्स टू ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो क्या है यहाँ पर, डोमेस्टिक, नेशनल नहीं है. यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक. इसीलिए हमने क्या बोला, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अब अगर यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर नेशनल होता तो नेशनल में क्या है, आप डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखते, क्योंकि नेशनल में हम हमारे जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के में रह रहे हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनकी सबकी नॉर्म की जो अर्निंग है वो हम अपनी नेशनल में ऐड करते हैं. ओके, जैसे हमने पीछे कल किया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो बाहर से भी अर्निंग होती है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की, वो भी होती है. तो अब वहां पर हमारे पास अगर नेशनल होगा तो नेशनल में डेफिनेशन में विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आएगी, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. ओके, वी राइट बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. तो वहां पर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा नेशनल के अंदर है. तो नेशनल में हमारे सारे के सारे इनकम, सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आती है, चाहे वो हमारी कंट्री में है, चाहे वो कंट्री से बाहर हमारे रेजिडेंट हैं.
ओके सो ये जो है हमारे पास डेफिनेशन हम इजीली बना सकते हैं। डोमेस्टिक है इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट नहीं लिखा है हमने, डोमेस्टिक है इसलिए हमने लिखा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट की जब बात आ जाती है तो वो हमारी नेशनल लेवल पर आ जाती है, जिसमें हम सभी नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे हैं उनको लेते हैं। Clear students? So it refers to gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ओके सो यहाँ क्रैमिंग नाम की कहीं कोई भी प्लेस नहीं है या क्रैमिंग का, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ग्रोस क्या है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, ओके प्रोडक्ट आपको पता है, यू नो दैट, एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू, ओके मार्केट प्राइस, सो ग्रोस, सो हियर ग्रोस, यस स्टूडेंट्स, सो ग्रोस, okay so gross in GDP market price signifies that no provision has been made for depreciation, क्योंकि gross में क्या है, included depreciation, gross में include होते हैं ना depreciation हमारे include होते हैं इसमें, पहले से include depreciation, okay so gross in GDP at market price signifies that no provision has been made for depreciation. अभी हमने depreciation के लिए कोई provision नहीं बनाया, that is it includes depreciation. Now the second is domestic word. So domestic, yes domestic. So in GDP at market price signifies that it includes goods and services produced by all units located within the domestic territory. जो हमारी domestic territory के अंदर जितनी भी units locate हैं, हमने पीछे किया था कि हमारे पास हम उसमें जो डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक में डजेंट मैटर कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या एनआरआई है, वो कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे जो यूनिट है वो लोकेट होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक में। ओके सो डोमेस्टिक इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस signifies that it includes goods and services produced by all units located within the domestic territory irrespective of fact whether produced by resident or non-resident. ये कोई मैटर नहीं कर रहा कि वो हमारा रेजिडेंट कर रहा है या हमारा नॉन रेजिडेंट कर रहा है, प्रोड्यूस ये डोमेस्टिक में किसी भी तरीके से कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। ओके देन द थर्ड इज मार्केट प्राइस, ओके मार्केट प्राइस, नाउ द नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस। So market price in GDP at market price signifies that it includes amount of indirect taxes paid and excludes amount of subsidy received. That is, it shows that net indirect taxes have been included. हमने किया था लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में we have already discussed about this topic net indirect taxes कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जब गवर्नमेंट लगाती है तो हमारे जो मार्केट प्राइस है उससे इंक्रीज हो जाते हैं, और जब सब्सिडीज दी जाती हैं तो हमारे मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं। ओके सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ओके सो ये हमारा क्या है, इस मार्केट प्राइस में इंक्लूड है। ओके देन नेक्स्ट लास्ट इज प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट, yes product in GDP at market price signifies that only final goods and services have to be included. Clear students? So now, so by making adjustment in GDP, अब हम इस ये जो GDP हमारा जब निकल आता है, so by making adjustment in GDP market price, we can drive other aggregates, GDP at factor cost, NDP at market price, NDP at factor cost, GNP at market price, GNP at factor cost, NNP at market price, NNP at factor cost. Okay, तो सबका हम इस जीडीपी को सिर्फ एक, ये हमारा अगर जीडीपी मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट कर ले
देन हम सभी के सभी जितने भी दूसरे एग्रीगेट्स हैं उनको इजिली डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, yes, next is gross domestic product at factor cost, at factor cost, GDP at factor cost. Okay, so it refers to gross money value, gross money value of all the final goods and services, final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year, during a period of 1 year. Okay students, so देखें GDP at factor cost. अब देखिए यहाँ पर क्या चीज चेंज है, जीबी ग्रोस भी सेम है, डोमेस्टिक भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, बस फैक्टर कॉस्ट आया। अब फैक्टर कॉस्ट की वजह से हमारी जो ये डेफिनेशन है ना, इसमें चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या आता है, देखो, इट रेफर्स टू ग्रोस मनी वैल्यू। हमारे पास जब मार्केट प्राइस होता है तो वहां मार्केट वैल्यू लिखते हैं, जो मार्केट में हम सेल करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज के ट्रांजेक्शन के बाद जो मार्केट में जिस प्राइस पर सेल होता है वो हमारी मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट ये हमारी मनी वैल्यू है। सो इट रेफर्स टू ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक है इसलिए विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। Okay, I think it's clear now. So GDP at factor cost. How to calculate GDP at factor cost? GDP at market price. Okay, GDP at market price हमने जो है वो निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर ट्रांजेक्शन करनी है। G सेम है, D सेम है, TP और P भी सेम है, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की ट्रांजेक्शन करनी है, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो मार्केट प्राइस की वजह से क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने पर हमारे मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहे थे और सब्सिडीज देने की वजह से मार्केट प्राइस कम हो गई थी। तब हमने क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना है, वापस फैक्टर कॉस्ट पे लाना है उसे, तो मार्केट मनी वैल्यू पे लाना है वापस। तो हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने प्लस किए थे मार्केट प्राइस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस किए थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो माइनस कर देंगे, और जो सब्सिडीज हमने माइनस की थी जो गवर्नमेंट ने उनको दी थी वो हम प्लस कर देंगे। ओके, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कर दें कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, या तो आप ये करें, या सबसे पहले आप क्या करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप निकाल लें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप निकाल लें, और देन आपने क्या करना है, सिंपल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने निकाले हैं ये आपने माइनस कर देंगे। या तो आप सिंपली क्या करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे, सब्सिडीज प्लस कर दे, या इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालकर उसको ही डायरेक्ट माइनस कर दे, तो ये नेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, you get GDP at factor cost. Okay, now the next is NDP at market price. NDP at market price. NDP at market price यानी net domestic product at market price. तो सेम वही कि it refers to, देखो क्योंकि यहाँ पर नेट है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सिर्फ डेफिनेशन में क्या करना है, देखो जो हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस,
मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ, मैं लिखूंगी नहीं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस था ना यहाँ पर, तो जी की ग्रोस की जगह नेट आ गया। तो आपने क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन में क्या चेंज करना है, जो आपने यहाँ पर ग्रोस लिखा है इस ग्रोस की जगह आपने एनडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट लिखना है। तो इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू, क्योंकि डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, सो नेट मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. I think it's clear now, students. So NDP at market price, it refers to net market value, not gross market value. It refers to net market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Okay, so NDP at market price. How to calculate GDP at market price? तो अब क्या करना है, सिर्फ आपने ग्रोस का नेट बनाना है। तो ग्रोस का नेट बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब आप ऊपर देखिए, ऊपर वहीं पर आपको डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ सिर्फ आपका ग्रोस की जगह क्या आ गया नीचे, नेट। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सारे डेफिनेशन सेम वही रहेगी, सिर्फ आपने ग्रोस में यहाँ आपने क्या लिखना है, नेट। यानी इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। Okay, students. So NDP at factor cost. NDP at factor cost. How to calculate this? So NDP at factor cost is equal to GDP at market price minus. Okay, हम क्या करेंगे, पहले तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड ग्रोस को नेट में चेंज करना है, माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ग्रोस national product at market price. Gross national product at market price. अब यहाँ पर देखिए, gross national product at market, it refers to gross market value, gross market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. ओके, देखिए आप डेफिनेशन को देखिए, ग्रोस, सो इट रेफर्स टू ग्रोस। ओके, मार्केट प्राइस, इट मींस ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ सिर्फ चेंज क्या है, डोमेस्टिक की जगह आ गया नेशनल। तो क्या आएगा यहाँ, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, क्योंकि नेशनल आ गया है। सो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पर देखिए नेशनल आया, तो बाय द आ गया, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो जीएनपी at market price is equal to GDP at market price। अब GDP at market price और तो सब सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है। तब क्या करोगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने कल जो टर्म की थी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो आपने सिर्फ प्लस कर देनी है डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। So it must be noted that GDP at market price can be less than GDP at GNP at market price can be less than GDP at market price. Then
when NFIA net factor income from abroad is negative, अगर आपका ये net factor income from abroad नेगेटिव में आ जाता है तो आपका जो GNP at market price होगा can be less than GDP at market price, and GNP at market price will be more than GDP at market price when NFIA is positive. Clear? Now the next is net national product at market price. Net national product at market price. ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी यहाँ पर क्या होगा, जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, इट रेफर्स टू, अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है, क्योंकि ग्रोस है, ग्रोस से आपको सिर्फ नेट बनाना है, सो इट रेफर्स टू net market value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. Clear? So now NNP at market price is equal to GNP at market price minus depreciation. ओके, आपने सिर्फ यहाँ पर, और सब सेम है, सिर्फ ग्रोस से नेट में चेंज करना है, सो माइनस डेप्रिसिएशन. Now the last aggregate is NNP at factor cost, and this is our national income. Okay, so factor cost, NNP at factor cost. तो देखिए ये क्या डेफिनेशन हो जाएगी, it refers to net money value of all the final goods and services, produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. Dear students, so NNP at factor cost is equal to GNP at market price. इसमें क्या करेंगे, ग्रोस से नेट बनाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस डेप्रिसिएशन. Clear? So it must be noted that NNP at factor cost is also known as national income. देखिए अभी ये definition देखिए, NNP at factor cost, it refers to the net money value, क्योंकि factor cost था, so net money value of all the final goods and services produced by the normal resident, क्योंकि national है तो by the normal residents of a country during a period of 1 year. Clear students? So today, that's all for today. Have a good day.